हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आया है फिजिकल एजुकेशन। यानी देखा जाए तो सारी शिक्षा का जो हमारे समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर को करना है। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी महत्व रखेंगे। हर एक क्वेश्चन को समझना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इसमें जो है हम क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए रहेगा, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो ये शब्दों का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रहेगा। तो इसीलिए त्रिपान सेंटर जो है आपके समक्ष शब्दों को ही प्रेजेंट करेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आया है यहाँ पर। Question on your screen. The question here: discuss the action helpful for the person suffering from hypertension. You know that question is very interesting. Discuss the action helpful for the person suffering from a hypertension. Write down to the procedure and contradictions of Sarla Matyasana in a detail. You know that is the most important here. A Sarla Matyasana in a detail. You know that the person suffering for the hypertension, the asana is here. The first asana, Tara asana. Second here, Kati Chakra asana. And third, Utyapadan asana. And next here, Ardha Hasasana and Sarla Matyasana. Gomukh asana, Uttan, Mandukasana and Vakrasana, Bhujang asana, Makrasana, Swasana and Nari. You know that's the most important asana for the person suffering for the hypertension. You know that that's important. The next here, Asod Pranayam asana. You know that is the most important asana here. Sod Pranayam asana and Sitli Pranayam. Sitli Pranayam is the most important for the here hypertension suffering person, and the technique lies flat on the back. You know that the techniques here lies flat on a back, and in this procedure, with the support of your hand, keep the top of your head on the mat. You know that's the most important. With the support of your hands, keep the top of your head on the mat. And next here, neck, upper back and shoulder will be lifted from to the ground. That's important here. Neck, upper back and shoulder here will be lifted from the ground. And the next here, relax your hand at the side of your body. Relax your hands at the side of your body and breathe normally and keep your toes stretched out. And hold the position for 30 seconds, then relax. And breathing awareness on hypertension suffering person. Inhale as you lift their chest and tuck their head. Inhale as you lift the chest and tuck their head, and exhale while relaxing the body and bearing it to the initially position here. And get back to the normal breathing. That's important here. And get back to the normal breathing. There is the most important here asana. And contradictions here, contradictions is a people with a cervical spondylitis is a frozen, a shoulder should be avoid practiced his asana. You know that that's important here. Contradictions that's important. The frozen shoulder should be avoid practicing this asana. That's important here. यदि हम यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपयोगी आसनों पर चर्चा करें। देखिए, जो व्यक्ति हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं, उच्च रक्तचाप यानी उनकी ब्लड प्रेशर हाई होती है, उन व्यक्तियों को कौन से आसन करना चाहिए जिससे जो है उनको काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो सरला मत्यासन की विधि और मतभेदों के विस्तार से लिखें। कि देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन अगला जो पूछा गया है
सरला मत्स्यासन होती है उसकी विधि और मतभेदों को हमने यहाँ पर बताने हैं कि क्या हो सकता है। यदि हम ये बात करें कि उच्च रक्तचाप वालों को कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के शिकार हैं, उनको तार आसन करना चाहिए। सर्वप्रथम जो है तार आसन काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए हैं। इवन देखा जाए तो कटी चक्र आसन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इवन उत्थान पादर आसन भी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। और अर्ध हर्षासन भी यहाँ पर उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण बनता है। इवन सबसे महत्वपूर्ण बनता है सरला मत्स्यासन, जिसके विषय में हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। तो सरला मत्स्यासन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात देखें तो गोमुख आसन भी उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति कर सकते हैं। उत्तान मडुआकासन भी बहुत काफ़ी महत्व रखता है। इवन वक्र आसन भी इसमें महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है और काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इवन देखें तो भुजंग आसन भी उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यहाँ पर करने की सलाह दी जाती है। और मकर आसन भी महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद श्वासन और नाड़ी परीक्षण, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। और देखा जाए तो ये व्यक्ति जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित है वो जो है शोधन प्राणायाम भी कर सकती हैं। शोधन प्राणायाम जो काफ़ी महत्वपूर्ण आसनों में से माना गया है। इवन शीतली प्राणायाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शोधन प्राणायाम और शीतली प्राणायाम दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। अब सर चलिए हम सरला मत्स्यासन की विधि और मतभेद पर जो है चर्चा करें। देखिए यहाँ पर हमारे समक्ष जो आ गया, यहाँ पर सरला जो आसन के बारे में हमने करना है। तो तकनीक पीठ के बल सीधे लेट जाएं। तकनीक क्या होता है, सीधे जो है पीठ के बल आप सीधे लेट जाएं। पीठ के बल ऊपर होना चाहिए। अपने हाथों के सहारे अपने सिर के ऊपर हिस्सों को चटाई पर रखें। अपने हाथों के सहारे से अपने सिर के जो है ऊपरी हिस्सों को चटाई पर रखना है। उसके पश्चात गर्दन, ऊपरी पीठ और कंधे जमीन से ऊपर उठाए जाएंगे। गर्दन, ऊपरी पीठ और कंधे जमीन से हम ऊपर उठाएंगे। उसके पश्चात अपने हाथ को अपने शरीर के बगल में आराम दें। सामान्य रूप से सांस लें और अपने पैर को, अंगुलियों को फैलाकर रखें। सामान्य रूप से सांस लेना है, सांस की गति सामान्य होना चाहिए और अपने पैर की उंगली को फैलाकर रखें। इससे काफ़ी आपको आसानी रहेगी। अगर अंतिम प्रोसेस देखें तो हम कम से कम इसमें 30 सेकेंड के लिए इसी स्थिति में हमें रहें, फिर आप आराम करें। तो इस तरह से जो है हम इस आसन को कर सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सांस जागरूकता ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सांस लेते हुए छाती को ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए छाती को हमें ऊपर उठाएं और फिर सिर को नीचे की ओर झुका दें। सिर जो है नीचे की ओर झुकेगी और शरीर को आराम देते हुए सांस छोड़ें, यानी सांस यहाँ पर सामान्य रखना है। और प्रारंभिक स्थिति में फिर से उसे लेके जाएं और सामान्य श्वास पर वापस आ जाएं, यानी उसी सांस से आपको वापस आना है। सांस यहाँ पर तेज़ी नहीं करना है, सांस जो है सामान्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम मतभेद की बात करें, यानी किन व्यक्तियों को ये नहीं करना चाहिए, कहते हैं सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रेजल शोल्डर वाले लोगों को इस आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनको विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ये आसन हाइपरटेंशन के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और ये काफ़ी ज़रूरी भी रहता है। आज के समय में देखा जाए तो ब्लड प्रेशर के बहुत से लोग जो है शिकार रहते हैं, तो ये आसन उनको काफ़ी जो है राहत दे सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जानना सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से भी महत्वपूर्ण बात है, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है और आप इसका माध्यम बन सकती हो। देखिए दोस्तों, सभी का अपना विचारधारा होता है। मैं तो यहाँ पर आपको अक्षरों भी दिखाता हूँ, जिससे आप मेरी गलतियों को भी इग्नोर कर सकते हो बहुत आसानी से। कहते हैं गलती करना तो इंसान का एक फितरत रहती है, लेकिन यहाँ पर जो अक्षर आपको दिख रहे हैं वो आप अच्छे से कर सकते हो, एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है
और ज़रूरी भी है। आगे बहुत से वीडियो आपके लिए तैयार है, तो रुकिए नहीं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में जो है सेव कीजिए, क्योंकि आप यहीं पे नहीं रुकने वाले हो। आपके लिए जो है यहाँ पर 6 से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है और सारे सिस्टमैटिक है, आपके बुक के अंतर्गत है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।